So we are discussing the 5 steps of communication process. The 5 steps of communication process are as follows. The number 1 point is sender has idea. It means that sender has a clear idea which he wants to convey to the receiver. Or the communication process actually begins with this first step. This is the first step of communication process. The communication process begins with the sender has an idea. The form of the idea may be influenced by different or by complex factors, and these factors these factors include mood, frame of reference, background, culture, and physical makeup, as well as the context of the situation and many other factors. Senders shape their ideas based on their own experiences and assumptions. It means that different factors may include, and these factors are including the mood of sender, the frame of a reference, the background, culture, and all these things. And sender shape up the ideas which he wants to convey to the receiver, it based on their own experiences and their own assumptions. The second thing is that sender encodes ideas. Encoding. What does encode means? Encode means converting the idea into words or gestures that will convey meaning. This is said to be encoding. If encoding is actually, and this is the second step of, and this is the next step in the communication process, which is encoding. Encoding means converting the idea into words or gestures that will convey the meaning. A major problem in communicating any message, either it is verbal or either it is non-verbal or it is in the form of the words, it is a difficulty that the words have a different meaning for the different people. Recognizing how easy it is to be misunderstood, and this can be this when the receiver encode the sender message, then this message can be misunderstood. अब जब रिसीवर जो है, जब वो उस मैसेज को, अब वो इनकोड का मतलब ये होता है कि दिस कंटेन्स, इट मीन्स दैट सेंडर इनकोड्स मैसेज, कि सेंडर अपना मैसेज जो है, इनकोड्स आइडिया, वो अपना आइडिया जो है वो इनकोड करता है, वो थ्रू वर्ड्स होता है, थ्रू जेस्चर्स होता है. लेकिन कम्युनिकेशन प्रोसेस में दिस इज द सेकेंड स्टेप. बट when the receiver encodes this idea, or when this idea receives to the receiver, when the receiver receives this idea, so when sender encodes the idea, then it can be misunderstood. Because the words have a different meaning for the different people. हर बंदा जो है वो अपने मुताबिक लफ्ज़ों को और अपने मुताबिक बॉडी जेस्चर्स को या अपने मुताबिक जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें से डिफरेंट किस्म के मीनिंग्स जो है वो उसमें से अखज़ कर सकता है, उसमें से जो है वो कंट्राइव कर सकता है, उसमें से निकाल सकता है. सो हाउ इट कैन बी ईजीली मिसअंडरस्टूड. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इन चूजिंग प्रॉपर वर्ड्स and symbols, sender must be alert to the receiver's communication skills, attitude, background, experience and culture. यानी कि जब एक जो सेंडर है जब अपने मैसेज को या अपनी इंफॉर्मेशन को इनकोड करता है, अपने आइडिया को, तो ही शुड चूज़ द प्रॉपर वर्ड्स एंड प्रॉपर सिम्बल्स so that the sender must be alert, and sender also know that what is the receiver communication skills, what sort of the communication skills receivers has, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि रिसीवर की communication skills कैसी हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके एक्सपीरियंसेस और उसका कल्चर किस तरह का है. द थर्ड पॉइंट इज़, एंड द थर्ड स्टेप इज सेंडर सेलेक्ट्स चैनल एंड ट्रांसमिट्स मैसेज. कि जो सेंडर है अब उसके बाद वो चैनल सेलेक्ट करता है, वो मीडियम सेलेक्ट करता है थ्रू विच ही वॉन्ट्स टू सेंड हिज मैसेज. वो कौन सा मीडियम है, वो रिटन मीडियम हो सकता है, वो ईमेल हो सकता है, वो यूट्यूब हो सकता है, वो ट्विटर हो सकता है, वो फेसबुक हो सकता है, वो वायरलेस कंप्यूटर हो सकता है, वायरलेस नेटवर्किंग हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है. सो चैनल क्या होता है? द मीडियम. चैनल मीन्स मीडियम. द मीडियम ओवर विच द मैसेज ट्रैवल्स एंड रीचेस टू द रिसीवर इज कॉल्ड चैनल. चैनल किसको कहते हैं? चैनल वो ज़रिया होता है, वो मीडियम होता है जिसके ज़रिए जो सेंडर होता है वो अपना मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंचाता है. दिस इज सेड टू बी चैनल. अब मैसेज में बी डिलीवर्ड थ्रू डिफरेंट चैनल्स. अब वो डिफरेंट चैनल कौन से हो सकते हैं? अ मैसेज कैन बी डिलीवर्ड बाय कंप्यूटर, वायरलेस नेटवर्क हो सकता है, स्मार्टफोन,
लेटर और इसके अलावा जो है रिपोर्ट राइटिंग हो सकता है, अनाउंसमेंट हो सकती है, इमेज हो सकता है, स्पोकन वर्ड्स हो सकते हैं, फैक्स हो सकता है, वेब पेज हो सकता है, या फिर मेमोरेंडम हो सकते हैं। मेमोरेंडम जो है एक रिटन मैसेज होता है, रिटन मैसेज इन बिजनेस और डिप्लोमेसी, उसको मेमोरेंडम बोलते हैं। सो दीज आर ऑल द चैनल्स ऑफ कन्वेइंग मैसेज। ये तमाम जो है वो अब ये चैनल हैं, और उसमें जो है आपने ये देखना है, चैनल मीन्स मीडियम, के थ्रू विच चैनल और थ्रू विच मीडियम sender is going to deliver the message. Either he is going to deliver his message through the channel of computer या wireless network या Twitter, smartphone, letter, memorandum और fax, वेब पेज, वो किस तरह से जो है वो अपने चैनल किस चैनल के थ्रू जो है he wants to deliver his message and he wants to send his message to receiver. Today's messages are increasingly carried over digital network with much opportunity for distraction and breakdown. And only well-crafted message may be accepted, understood and acted. Anything that interrupts the transmission of a message in the communication process is called noise. अब इसमें एक और चीज़ है, noise क्या होता है। अब जब आप कोई चैनल चूज़ करते हैं और किसी भी किस्म की जब आप मैसेज की डिलीवरेंस में जो भी किसी भी किस्म की जो इंटरप्शन होती है या एनीथिंग दैट इंटरप्ट्स द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, द फ्लो ऑफ मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सेड टू बी नॉइज। चैनल नॉइज, अब चैनल नॉइज, चैनल कौन सा हो सकता है? इट कैन बी वायरलेस, इट कैन बी टेलीफोन, इट कैन बी फेसबुक, इट कैन बी ईमेल, इट कैन बी मेमोरेंडम, इट कैन बी फैक्स, कोई भी चैनल हो सकता है। चैनल नॉइज में रेंज from a weak internet signal to sloppy formatting and typos in emails message. अब चैनल नॉइज़ क्या हो सकता है? अब वो नॉइज़, अभी मैंने आपको बताया कि नॉइज़ क्या चीज़ होती है। नॉइज़ किसी भी किस्म की इंटरप्शन कह सकते हैं, एनीथिंग दैट इंटरप्ट्स द ट्रांसमिशन ऑफ योर मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, दैट इज़ नॉइज़। अब चैनल नॉइज़ क्या है कि वो जो मीडियम है जिसके थ्रू यू आर गोइंग टू डिलीवर योर मैसेज एंड यू आर गोइंग टू सेंड योर मैसेज टू द रिसीवर, तो उस चैनल में जो इंटरप्शन होगी दैट इज सेड टू बी अ चैनल नॉइज़। अब चैनल नॉइज़ कैन वेरी, अब वो इट कैन वेरी, और ये चैनल नॉइज़ में इंक्लूड, और इसमें चैनल नॉइज़ की जब बात करें तो इसमें जो है इट कैन वेरी फ्रॉम अ वीक, इट कैन बी अ वीक इंटरनेट सिग्नल्स, इसमें कोई वीक इंटरनेट सिग्नल का प्रॉब्लम भी हो सकता है, टाइपो एरर्स हो सकते हैं, फिर इसके अलावा इसमें स्लूपी फॉर्मेटिंग हो सकती है। स्लूपी मीन्स केयरलेस किस्म की जो है फॉर्मेटिंग जो है, ये सब चीज़ें जो है वो इंक्लूड हैं, चैनल नॉइज़ में आती हैं। So noise may even include the annoyance or receiver feels when the sender choose an improper channel from transmission of a message. इसके अलावा इन 3-4 चीज़ों के अलावा जो है, अगर जो है ये चैनल नॉइज़ जो है या नॉइज़ जो है वो ये भी हो सकती है कि जो रिसीवर है वो एनाय हो सकता है कि अगर जो है सेंडर ने गलत मीडियम चूज़ किया, गलत चैनल चूज़ किया है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। दिस कैन ऑल्सो कम इन द चैनल नॉइज़, दिस कैन ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉइज़, बिकॉज नॉइज़ मीन्स एनीथिंग दैट इंटरप्ट्स द ट्रांसमिशन ऑफ योर मैसेज। तो अब वो चैनल भी हो सकता है, और चैनल नॉइज़ मीन्स कि वो कोई मीडियम हो सकता है थ्रू विच यू आर गोइंग टू सेंड योर मैसेज टू द रिसीवर, सो दैट इज़ अ चैनल नॉइज़। लेकिन इस चैनल नॉइज़ में जो है जो चीज़ें शामिल हैं उसमें इंटरनेट, वीक इंटरनेट सिग्नल्स हैं, स्लूपी फॉर्मेटिंग है या टाइपो एरर्स है, लेकिन इसके अलावा जो है वो आपका रॉन्ग चैनल जो है रॉन्ग चैनल भी हो सकता है, ये भी जो है इट कैन बी द कॉज ऑफ नॉइज़। इट कैन ऑल्सो कम इन टू द कैटेगरी ऑफ चैनल नॉइज़, क्योंकि जो है इफ़ यू आर चूजिंग अ रॉन्ग मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ योर मैसेज, and if you are using an improper channel for the transmission, so the receiver get annoyed and the receiver is overloaded with the message and information. So you have to be, this is the third step, and you have to be very careful when the sender selects the channel and transmits the message. सो इसमें हमने 2 बातें देखी कि पहले आपने चैनल को सिलेक्ट करना है। चैनल मीन्स द मीडियम थ्रू विच यू आर गोइंग टू डिलीवर योर मैसेज, एंड थ्रू चैनल इज़ द मीडियम थ्रू विच यू ट्रांसमिट योर मैसेज। एंड नॉइज़, द चैनल नॉइज़ मीन्स, और नॉइज़ मीन्स एनीथिंग दैट इंटरप्ट्स द transmission of your message. It can be the weak internet signals, sloppy formatting, typo errors, and it can also be the wrong channel or wrong medium on the part of sender.
which may annoy receiver. The fourth point is that receiver decodes message. कि receiver जो है उसके बाद जो fourth step ये था, अब पहले 3 steps जो थे वो related थे sender से, कि sender has a clear idea, then sender encodes message. Encoding means converting the idea into the words or gestures that will convey your message, and the third one is that sender selects the channel and that transmits the message. Now it's receivers कि अब वो रिसीवर, अब उसने चैनल भी सेंडर ने सेलेक्ट कर लिया कि किस मीडियम के थ्रू जो है वो अपना मैसेज कन्वे करेगा, और ट्रांसमिट भी कर दिया उसने मैसेज रिसीवर तक. नाउ द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज. अब रिसीवर जो है वो मैसेज को डिकोड करेगा. द फोर्थ स्टेप इज रिसीवर डिकोड्स मैसेज. इट मीन्स दैट द इंडिविजुअल टू हुम द मैसेज इज इंटेंडेड टू द रिसीव. रिसीवर कौन होता है? रिसीवर वो इंडिविजुअल होता है जिस तक मैसेज जो है वो कन्वे किया जाता है या जिस तक मैसेज पहुंचाने का जो है इरादा होता है. Translating the message from its symbol form into meaning involves decoding. अब decoding क्या होता है? Encodes और decodes थोड़ा सा डिफरेंट है. Decoding means कि आप अपने अक्सर कॉमनली वर्ड यूज सुना होगा कि हम मैसेज को डिकोड करते हैं. डिकोड मीन्स कि उसमें जो सिम्बल्स होते हैं या जो उसमें वर्ड्स होते हैं उनका जो मीनिंग होता है वो आप उसको ट्रांसलेट करते हैं. डिकोडिंग मीन्स ट्रांसलेटिंग द मैसेज फ्रॉम इट्स सिम्बल्स फ्रॉम इट्स सिम्बॉल फॉर्म, यानी कि उसकी जो सिम्बॉलिक फॉर्म है उसमें से आपने उससे अपने सिम्बॉलिक फॉर्म से मैसेज को ट्रांसलेट करना है सिंपल मीनिंग में इनटू मीनिंग दैट इज सेड टू बी डिकोडिंग. अगेन आई रिपीट, ट्रांसलेटिंग द मैसेज फ्रॉम इट्स सिम्बॉलिक फॉर्म या फ्रॉम इट्स सिम्बल फॉर्म इनटू मीनिंग इज कॉल्ड डिकोडिंग. अब ओनली व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मीनिंग इंटेंडेड बाय द सेंडर दैट इज सक्सेसफुल डिकोड्स मैसेज. अब एक मैसेज उस वक्त तक सक्सेसफुल डिकोडिंग मैसेज वो वाला सक्सेसफुल मैसेज होता है जिसको सक्सेसफुली डिकोड किया गया. और सक्सेसफुली डिकोड किस तरह से किया जाता है कि रिसीवर जो है, रिसीवर इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द मैसेज या कंप्लीट इंफॉर्मेशन बाय द सेंडर. यानी कि उसमें रिसीवर जो है वो अंडरस्टैंड करे द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द मैसेज which is intended by the sender or which the sender wants to convey to the receiver. So that is decoding the message. और decoding means that कि उसकी मैसेज की जो सिम्बॉलिक फॉर्म है उससे इसको कन्वर्ट किया जाए जो है मीनिंग्स में, दैट इज सेड टू बी डिकोडिंग. यानी कि ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेज, ट्रांसलेटिंग द मैसेज फ्रॉम सिम्बॉलिक फॉर्म टू द इनटू मीनिंग इज कॉल्ड डिकोडिंग. और एक सक्सेसफुल डिकोडिंग मैसेज वो होता है जिसमें जो रिसीवर है, रिसीवर इज एबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द मैसेज, कंप्लीट मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इंटेंडेड बाय द सेंडर. सो दैट इज डिकोडिंग मैसेज. द फिफ्थ स्टेप इज़ फीडबैक रिटर्न्स टू सेंडर. कि दोबारा से जो है वो क्या फीडबैक था जो सेंडर तक पहुंचता है, यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर क्रिएट्स फीडबैक. A vital part of the communication process. This is very important communication process. Feedback. Feedback helps the sender to know that either his message has been completely understood or received. फीडबैक जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे सेंडर को पता चलता है कि जो वो मैसेज कन्वे करना चाह रहा था, जो उसका मीनिंग था, जो है कि सेंडर नोज दैट द मैसेज विच ही वांटेड टू कन्वे और विच ही वांटेड टू सेंड was understood completely, was received, has been received as it is. उसको as it is जो है वो ना सिर्फ रिसीव कर लिया गया बल्कि it has been understood, उसको उसी तरह से जो है understood भी कर लिया गया. Sender can encourage feedback by asking questions or by asking written something. So this is feedback return to sender. So these are all 5 steps of communication process. सो वी हैव डिफाइंड कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, और कम्युनिकेशन के जो है वो 5 स्टेप्स जो है. कम्युनिकेशन जो है बेसिकली एक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है या ट्रांसमिशन इन मीनिंग है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. अब उसमें जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं जो कि हमने 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस कर लिए. अब जो है इसमें एक और हम जो चीज़ जो है वो देखेंगे. इसमें एक टेबल बना हुआ है आपकी जो है बुक में, मेरे रिसोर्स पैक्स में. इन माई रिसोर्स पैक्स इट इज़ ऑन द पेज नंबर 37 एंड दिस इज़ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. एंड ऑन दिस पेज अ टेबल हैज़ बीन made, and this table is actually elaborating the communication process, and this table or this figure is actually telling you how can you communicate effectively. So I will tell you the few things.
जैसे द फर्स्ट थिंग इज़ दैट द सेंडर हैज़ अ मैसेज. सो हाउ कैन अ सेंडर, when sender wants to send a message, sender has an idea. So if how can this 5 steps can be made effectively in ये communication process के 5 steps हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन ये टेबल जो है आपको शो कर रहा है कि टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली ये 5 स्टेप्स जो हैं वो किस तरह से, इनमें क्या क्या चीज़ें जो है वो होनी चाहिए. सो वी विल डिस्कस इट.